Hello everyone, welcome to my channel. It's time to study. Good morning students. Welcome back again to our chapter. Good morning student. Welcome back again to our chapter journal. Last lecture में हमने journal entries वाला question किया था. Today also we are going to study the question regarding the journal. Textbook problem number 3. Good morning students, welcome back. Last lecture we completed the second problem of journal. Now today we are going to study the problem number 3 of the lesson journal. So let's come to our textbook. Come to textbook page number 66. Journalize the following transaction in the books of राजकुमार ग्रोसरी सेलर. सो पहले हम जर्नल ड्रॉ करेंगे पूरा पेज का. डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ राजकुमार ग्रोसरी सेलर हम ड्रॉ करेंगे जर्नल. सो लेट्स प्रिपेयर द जर्नल. 2 pages जर्नल वी हैव टू प्रिपेयर. मोस्ट प्रोबेबल 2 पेज लगेगा बिकॉज देर आर lot of transactions, sum is large, so we have to prepare 2 page journal. Date particular LF debit credit. So now we'll start with 2019. पहला अप्रैल 1 यहाँ पे 18 लिखा है. अब 18 मत लिखो, 19 लिखो. 2019 अप्रैल 1. नाउ टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा एरर है बिकॉज इन आंसर इट इज़ गिवन 2,50,000 एंड इन क्वेश्चन इट इज़ गिवन 2 lakhs. तो क्वेश्चन में यहाँ पे चेंज करो, कैश को 2,50,000 लिखो. क्वेश्चन में कैश 2 lakhs नहीं है, 2,50,000 लिखना. सो राजकुमार स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश बिल्डिंग एंड लोन. सो एंट्री क्या होगी फिर? अप्रैल 1 कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट कॉलम 2,50,000, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2 lakhs, टू राकेश लोन एंड टू कैपिटल. Rakesh loan 50,000. So whatever is the difference we have to write in capital. Debit total is 4,50,000. Credit minus 50. So answer will get 4 lakh. Narration being started business with cash, building and loan from Rakesh. Now next is April 4. Deposited cash into bank. हमने बैंक में पैसा जमा किया है. So what will be the entry? Cash will go out. So Dena bank account debit to cash account amount 50,000. Narration being cash deposited into Dena bank. Next, April 7. Purchase computer from Bridges 30,000 at the rate GST and paid by check. So computer is purchased. So entry computer account debit. Tax we are going to pay. So 2 types of tax we are going to pay. एक सेंट्रल गवर्नमेंट को और एक स्टेट गवर्नमेंट को. So input CGST and input SGST to Dena Bank. So computer amount is 30,000. Tax percentage is 18. Out of 18 percentage हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है. 9% फॉर CGST एंड 9% फॉर SGST. सो 30,000 का 9% आएगा. 2,700 फॉर CGST एंड 2,700 फॉर SGST. सो राइट हियर 30,000 कंप्यूटर कॉलम, टैक्स में 2,700 ईच एंड टोटल देना बैंक कॉलम 35,400. नरेशन बीइंग कंप्यूटर परचेस एट द रेट 18% GST एंड पेड बाय चेक. नेक्स्ट इज अप्रैल 10 कैश सेल्स. सो अगर हमने सेल किया तो पैसा मिलेगा. एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 90,000 बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश. आफ्टर दैट अप्रैल 12 गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू गणेश. सो एंट्री विल भी अगर हमने गणेश को गुड सोल्ड किया है. सो गणेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स. TD बोला है. सो 10,000 अमाउंट मत लिखो, वर्किंग नोट में करो. ओरिजिनल कॉस्ट 10,000 लेस TD ट्रेड डिस्काउंट 5%. 10,000 का 5% सॉल्व करोगे तो 500 आएगा, माइनस करके 9,500. So amount 9,500 being goods sold to Ganesh on credit at 5% TD. Now we'll come to next date अप्रैल 15. गणेश रिटर्न गुड्स. अब भी जो हमने गणेश को सेल किया था उसने रिटर्न किया. तो कौन सा रिटर्न है वो? सेल्स रिटर्न. सो एंट्री में हम लोग रिटर्न इनवर्ड भी लिख सकते हैं या फिर हम लोग यहाँ पे रिटर्न इनवर्ड की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गणेश एन अमाउंट
950 being goods returned by Ganesh या from Ganesh. That is our 15. Next 18th, goods taken by Rajkumar for personal use. अगर personal use word आया drawing account we have to take entry drawing account debit to goods. Only goods लिखा तो भी चलेगा. 1000 being goods withdrawn for personal use. 18. So amount is 1000. Next is 20. Paid telephone charges 500 and taxi fare 200. So एंट्री कंबाइन एंट्री में हमें जो जाना पड़ेगा टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट. कन्वेंस की जगह आपने टैक्सी फेयर अकाउंट लिखा तो भी चलेगा. टू कैश टेलीफोन में 500, टैक्सी फेयर में 200, टोटल 700 बीइंग टेलीफोन चार्जेस एंड टैक्सी फेयर पेड. नेक्स्ट विल कम टू 22nd. पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस. सो ट्रांसपोर्ट चार्जेस डेट लिखो. ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट. इनपुट CGST अकाउंट डेबिट. इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश. अब 5000 है उसका 2.5% सेंट्रल गवर्नमेंट को देने का एंड 2.5% स्टेट गवर्नमेंट को. 5000 का 2.5% करोगे तो 125 आएगा दोनों में. सो 5000 डेबिट में, 125 भी डेबिट में, टैक्स में, दोनों में, और टोटल 5250 बीइंग पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस इंक्लूडिंग 5% GST. नेक्स्ट पेड ऑडिट फीस 5000 बाय चेक. सो 24th ऑडिट फी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट अमाउंट 5000 बीइंग पेड ऑडिट फीस. नेक्स्ट पॉइंट purchase furniture 70,000 and amount paid by check. So GST again furniture account debit. Input CGST account debit. Input SGST account debit to देना बैंक अकाउंट. 70,000 का फर्नीचर है, उसमें से टैक्स देखो 12 है. सो 6% सेंट्रल गवर्नमेंट को दो. 70 का 6% निकालो. 4200 आएगा दोनों में. टोटल 78,400 बीइंग फर्नीचर परचेस एट 12% GST. नेक्स्ट डेट इज 28. सोल्ड मोटर कार 1 लाख एट 18% GST. अब उल्टा करना है, सेल की एंट्री है, मोटर कार सेल हुआ है. नेक्स्ट इज सोल्ड मोटर कार 1 लाख 18% GST क्रेडिटेड टू आवर अकाउंट. सो मोटर कार सेल की एंट्री करेंगे. अकाउंट बोला है तो देना बैंक अकाउंट डेबिट. अब सेल में टैक्स क्रेडिट होगा. टू मोटर कार इनपुट की जगह आउटपुट हो जाएगा. आउटपुट CGST और आउटपुट SGST. तो मोटर कार कितने की वैल्यू है 1 लाख. 18 का हाफ 9%. 1 लाख का 9% 9000. आउटपुट टैक्स में दोनों में 9000 आएगा. 1 लाख और 9 टोटल बैंक में 1 लाख 18 बीइंग सोल्ड मोटर कार एट द रेट 18% GST. पेड कैश टू कविता वो अलाउड अस डिस्काउंट. सो कविता को हमने पैसा पे किया. कविता अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट बिकॉज उसने हमें डिस्काउंट दिया है. कविता के डेबिट में 16,000, कैश में और डिस्काउंट में. अमाउंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? डिस्काउंट की अमाउंट देके रखिए 5000. सो कैश विल बी द डिफरेंस 15,500 being paid to Kavita and discount received. So here we completed our problem. So take the total now. 8,60,200 close both double underline it and close it. So complete कर दो ये क्वेश्चन आपकी नोटबुक में और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम. टिल दैट टाइम वर्क हार्ड. थैंक यू.